Good morning, everyone. And as from yesterday's class, if in continuation of yesterday's class, we have almost finished the chapter 3. Only one value-based, I think value-based or life skill is left. So we will do it as soon as possible, and then we'll continue with the practice book. So I would like to request all of you sit with both practice and reader book. दोनों बुक लेके बैठेंगे, प्रैक्टिस और रीडर. रीडर में बहुत कम रह गया है, सो वी विल फिनिश इट एंड उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे प्रैक्टिस को. तो पहले हम स्क्रीन शेयर कर देते हैं. लेट मी डिसेबल द वेटिंग रूम सो दैट स्टूडेंट्स वुड जॉइन. ऑलरेडी है डन. बच्चे धीरे धीरे ज्वाइन कर रहे हैं, सो विल नॉट वेस्ट द टाइम. Okay, as you can see on the screen, what is this one, D9. We already have done all the things. I think D7 we have done in last class. Now look at number 8, D8, that is value-based question. Look at this picture. Everyone, please look at your book or on the screen. Those who are having the reader book, they will look at their book, and those who are not, they will look at the screen. So what is on the screen? You can see there is a picture of a tree who is shouting that don't kill me, help, someone is killing me. This picture itself used to give you a message. That what is the message? Kriti, beta wait, हैंड रेस करे हो, आपको मैं करूंगी अनम्यूट, पर अभी नहीं, ठीक है. लास्ट के 5 मिनट्स के पहले अनम्यूट कर दूंगी आपको. So this is page number 50. And the picture is giving you a message that don't kill the trees. Yes, Nandini, kya ho gaya Nandini? Nandini, if it is not urgent, then don't raise your hand. I will make you unmute when the class will only left 5 minutes will left. Okay. See, as you can see, और आप लोग सब लोगों को पता है that man used to. अभी तक हम लोग जितने भी chapters इस यूनिट में पढ़ा, हम लोगों ने ये मैसेज देखा कि a man used to destroy forest or cut plants for fulfilling his needs. अभी तक हम लोगों ने ये देखा. And अगर हम लोग पर्सपेक्टिव देखें ट्री का, तो ट्री इज नाउ फीलिंग इन डेंजर, जो आप इस पिक्चर में देख रहे हो, एंड ही इज आस्किंग फॉर हेल्प, है ना. समवन इज किलिंग मी. Now next, if we cut a tree with an axe, axe बोलते हैं कुल्हाड़ी को, जो ऊपर आपने देखा, it gets killed, but we harm the trees in many more ways. सिर्फ हम पेड़ों को काटने से ही पेड़ों को हार्म नहीं हो जाते, बल्कि बहुत सारे और भी तरीके हैं जिससे हम लोग पेड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं. Okay, we cut away too many branches of a tree along with the leaves on them. The ground close to the tree is cemented. कभी-कभी आप देखते होंगे अपार्टमेंट्स में या फिर प्राइवेट बंगलोज में फ्लोर्स को सीमेंटेड कर दिया जाता है ना. सॉइल के ऊपर से सीमेंट डाल के उसको सॉलिड कर दिया जाता है. That also used to damage the root of plants. We dig the earth near the root of the tree. जमीन को लगातार. ये क्या हैंड रेसिंग का कुछ चल रहा है क्या अभी? वैष्णवी, हैंड रेसिंग करने का भी कोई कंपटीशन चल रहा है? Now we put advertisements on the trees with names. कभी कभी पेड़ों पे आप देखते होंगे बड़े बड़े पोस्टर्स या पैम्पलेट्स चिपका दिए जाते हैं, है ना. तो इस तरह से भी हम पेड़ों को नुकसान ही पहुंचाते हैं by using different ways. Trees gives us so much. See, as far till now we have seen that trees used to give us so many things. बहुत कुछ देते हैं, लेकिन बदले में हम सिर्फ उनको डैमेज करते हैं. So the poet is asking, or the writer is demanding from us, that should we not express, अगर पेड़ हमें इतना कुछ देते हैं, तो क्या ये हमारा फर्ज नहीं कि हम भी रिटर्न में प्लांट्स को कुछ दें, उनको ग्रेटिट्यूड शो करें. Discuss in the class how we can repay for the kindness of the tree. One example. See, ये डिस्कशन हम लोग करेंगे, लेकिन as revision work अभी नहीं, ठीक है. Now looking to the D9. यहाँ पे डिस्कशन करना है. जब हम लोग का रिवीजन शुरू होगा तो यहाँ ये टॉपिक हम लोग डिस्कशन के लिए रखेंगे. Now look at D9. Think of a slogan, नारा, है ना, on the importance of tree and write in the box provided. You may use the words given in the box. जो ये वर्ड्स देख रहे हो, इसको ध्यान में रखते हुए
1 2 3 4 5 बनाना था, लेकिन एक ऑलरेडी बना हुआ है, 4 और बनाना है। सो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, बट अगर आप इसके अलावा भी कुछ चाहो तो अपना ऐड कर सकते हो। दैट इज कंप्लीटली अप टू योर विश। ओके, सो स्टार्ट। ओके, लेट मी जस्ट ओपन दैट. So grow more tea is already written. You can write your annotations. Write down. So should I write with a caps lock? मैं caps lock से लिखना शुरू करती हूँ, ठीक है? Okay, now write down. So you can write here: save trees, save life. Okay, write down: save life. Done. Now the next one: each one plant. Write down: each one, comma, plant one. Plant one. Each one plant one. ठीक है? Now you can write don't cut plants. Don't cut plants. या फिर don't cut trees. Whatever you want. Don't cut trees. Next. Don't burn woods. Don't burn woods. How are you? Nice. You talk better. I need the task. Don't burn woods. Done. Now number 10 is also an activity which we will do in our classrooms. ठीक है, जब हम 16th के बाद classrooms में मिलेंगे तब हम लोग ये एक डिस्कस करना है. यहाँ है: request your teacher to allot a corner for your class, either in classroom or in the school ground. Maintain it as a green corner. Water and nurture the plants kept there regularly, and observe and discuss with your friend the changes that you observe in the plants every day. So we will do it in later on. I think everyone has now written. सब लोगों ने लिख लिया. So I will. Let's see. Do that anything is left in this one or not? Yes. Now moving. देखो, दो छोटे छोटे एक reading to yourself section है, which is expressing about चिपको movement. बच्चों, आपको पता है, जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया, मैंने आप लोगों को बताया कि प्लांट्स को ह्यूमंस काटते हैं, है ना? When जब लोगों की पॉपुलेशन, हमारी जनसंख्या, मैन की पॉपुलेशन बढ़ने लगी पृथ्वी पे, तो हमारी जरूरतें बढ़ने लगी, और तब उन जरूरतों को पूरा करने के लिए लोग जंगल को काटेंगे. कुछ हद तक जरूरत पूरा करना तब चला, लेकिन आफ्टर सम टाइम
people used to destroy the forest for fulfilling their selfish greed or needs, है ना, पैसा कमाने के लिए, because बहुत सारे ऐसे trees भी हैं जिनकी लकड़ियां बहुत कॉस्टली आती हैं, ठीक है, तो they used to cut or damage the forest. इंडिया में एक वक्त ऐसा था जब इसी तरह का कुछ सिचुएशन था एंड बहुत सारे जंगल डिस्ट्रॉय किए जा रहे थे. तभी क्या हुआ, देयर वाज अ लेडी, है ना, चलो इसको पढ़ते हैं फिर आप लोग को धीरे धीरे बीच बीच में समझाती जाऊंगी. जिनको भी रीडिंग वगैरह है ये सब रिवीजन में कराऊंगी, तो जस्ट डोंट नीड टू वरी बिकॉज अभी बहुत हरी में आ गए, धीरे धीरे करने की वजह से प्रैक्टिस में बहुत अभी रहा हुआ हमारा, है ना. सो पहले मेरा प्राइम मोटिव होगा कि पहले मैं कंप्लीट करा दूं, उसके बाद रिवीजन में आपको सारी एक्टिविटी और जो भी है वो मैं करवाऊंगी आपको. सो जस्ट डोंट वरी अबाउट इट. सो चिपको इज अ हिंदी वर्ड. चिपकना सबको मालूम है ना, टू हग समवन, है ना, दैट मीन्स टू क्लैप्स, किसी से लिपट जाना. It means to clasp, to hug. In March 1974, a contractor went to the forest in the Chamoli district of Uttar Pradesh to cut trees. Gaura Devi, a brave village woman, came to know of it. She took a group of 26 women. She took a group of 26 women to the forest and they hugged the trees there. They said that the woodcutters would have to cut their bodies before cutting the trees and the trees were saved. एक कॉन्ट्रैक्टर मतलब क्या, जैसे कि जो कॉन्ट्रैक्ट लेता है, कह सकते हैं कि जैसे कि मान लो जैसे बिल्डिंग्स वगैरह बनता है ना, तो बिल्डिंग्स बनाने का कॉन्ट्रैक्ट जो साइन करता है दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टर. अ पर्सन हु यूज्ड टू डील टू फुलफिल द वर्क, दैट इज कॉन्ट्रैक्टर. तो ये भी इसमें ये कॉन्ट्रैक्टर जो था ये जंगलों को इसको मिला होगा कि जंगल हटाना या फिर वहां से लकड़ियों को लाना कुछ भी. तो ये वहाँ चमोली डिस्ट्रिक्ट वाज द नेम ऑफ दैट प्लेस जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है. वहां के किसी जंगल में ये पेड़ों को काटने को पहुंचा था और इस बात को पता चला था किसी अ लेडी नेम गौरा देवी. She was very brave, and what she has done, when she got to know that the particular person is going to damage the forest, what she has done, she has made a group of 26 women, 26 औरतों का ग्रुप बना के she went there where that contractor was trying to demolish the forest or destroying the forest. And what she has done, she has tried, she made an effort. उसने क्या किया, वो उन औरतों के साथ जिस पेड़ को कॉन्ट्रैक्टर काटने को जाता था वो उसके चारों तरफ लिपट जाती थी और उन्होंने उनको कह रखा था कि अगर आपको पेड़ काटना है तो यू हैव टू कट आवर बॉडीज आल्सो. पहले हमारा शरीर कटेगा उसके बाद ही पेड़ कटेंगे. और इस तरह से वहां उन लोगों ने पेड़ों को बचाया. फिर धीरे धीरे क्या हुआ ना, ये शी हैज टेकन एन इनिशिएटिव और धीरे धीरे जो लोग भी नेचर लवर्स थे, नेचर प्रोटेक्ट करना चाहते थे, प्लांट्स को बचाना चाहते थे, ये उनके बीच में एक फेमस स्टेप हो गया. सो दिस इनिशिएटिव नाउ बिकेम हैज टेकन अ शेप ऑफ अ मूवमेंट. पूरे इंडिया में एक मूवमेंट का रूप ले चुका था, ठीक है, और इसका नाम पड़ा चिपको मूवमेंट, ठीक है. दिस इंसिडेंट शोड अ न्यू वे टू सेव द ट्रीज एंड लेड द चिपको मूवमेंट. शुरू किया इन्होंने, गौरा देवी ने, और ये नाउ इट हैज बिकेम अ मूवमेंट जो कि लेड किया गया दो लोगों के बाद. एक देखो यहाँ इनका फिगर दिख रहा है स्क्रीन पे, ये सुंदरलाल बहुगुणा and the next one was Chandi Prasad Bhatt. So the Chipko movement was led by Sundarlal Bahuguna and Chandi Prasad Bhatt, and the main leaders of the movement. Bahuguna once said, a tree is like 10 suns because it gives 10 valuable things: oxygen, water, energy, wood, clothes, medicines, timber, fodder, flowers, and shit. एक बार इन्होंने कहा था, किसने, जिन्होंने ये जो मूवमेंट को लीड किया था, है ना, नेतृत्व, लीड करना मतलब आगे बढ़ के उस मूवमेंट को चलाना. शुरू किया था गौरा देवी ने, लेकिन पूरे कंट्री में इस मूवमेंट को लीड किया था सुंदरलाल बहुगुणा और चांदी प्रसाद भट्ट ने. एक बार इन्होंने कहा था कि एक पेड़ 10 बेटों की तरह है. कैसे? क्योंकि ट्रीज जो होते हैं वो 10 वैल्यूएबल थिंग्स देते हैं. तो कौन कौन?
ऑक्सीजन, वाटर, एनर्जी, फूड, क्लोथ्स, मेडिसिन्स, टिम्बर, फॉडर, फ्लावर्स एंड शेड। ठीक है, अभी देखो ये तो हो गया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स अगर इनसाइड बनाऊंगी तो मैं पोस्ट करूंगी आपके क्लास ग्रुप में, while we will do the revision work। अभी नहीं, ठीक है। अभी देखेंगे दूसरा, टेप स्क्रिप्ट पे आ जाओ, which is on page number 54। पेज नंबर 54, मूव टू पेज नंबर 54, दैट इज द टेप स्क्रिप्ट। पहले टेप स्क्रिप्ट करेंगे, देन उससे रिलेटेड वर्कशीट्स करेंगे। दैट इज हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ पॉलीबैग्स। सब लोग जानते हो ना कि पॉलीथीन्स बैन है ना। गवर्नमेंट ने पॉलीथीन्स को बैन कर रखा है। क्यों कर रखा है? बिकॉज दे आर वेरी harmful। Girls, are you there? Anyone? What happened, Arda? क्या हुआ बेटा? मैम वो मेरा कूलर चल रहा था। कोई बात, चलो। तो अभी बेटा हो सकता है डिस्कनेक्ट हो जाऊं, तो पैनिक मत करना, आवाज में मत करना, है ना। फिर से कनेक्ट कर लूंगी, बट आप लोग शांत से रहना क्लास में। चलो, सी हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ पॉलीबैग्स। Vegetable sellers, grocers, and bakers give us things packed in polybags. Milk is also often supplied in polybags. Polybags are made of polythene, which is a kind of thin, soft plastic. It is strong and cannot be destroyed easily. That is why we find it so useful. But that is also why it is so harmful. बड़ा मजा आता है ना जब दुकानदार के यहाँ जाते हैं, और पहले, अभी तो फिर भी बहुत हद तक देखोगे कि कपड़े का थैला या फिर बहुत कहीं कहीं जूट या पेपर बैग्स यूज होते हैं। नहीं तो पहले तो बहुत कॉमन था कि हम लोगों को पॉलिथीन में सामान, अभी भी आप जाओ वेजिटेबल सेलर्स के पास या ग्रोसरी शॉप्स के पास, तो वो लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक में पॉलिथीन्स में हमें सामान को रैप करके दे देते हैं। बट दैट इज नॉट गुड। क्यों? क्योंकि इट इज वेरी हार्मफुल। आसान तो है, और कभी ये जल्दी क्या होता है ना, कभी भी ये डिस्ट्रॉय नहीं होता है, लेकिन इसीलिए ये हार्मफुल भी है। क्यों हार्मफुल है? क्योंकि इस वजह से आप यूज करो और अगर इसको यहाँ वहां फेंक दो, हम लोग देखते हैं। अच्छा, ये बना किसका होता है? पॉलिथीन से बना होता है ये एक तरह का। ओके, नेशनल एंथम। ओके बच्चों, मैंने लास्ट डे भी आप लोगों को कहा था कि जब भी नेशनल एंथम मैं बोलूं तो एटलीस्ट आप लोग खड़े हो जाओ, है ना। नेशनल एंथम हमारा प्राउड है, तो डोंट डिसरिस्पेक्ट। अभी ये तो ओवर हो गया, बट हमेशा ध्यान रखो। अब तो स्कूल आओगे, बट मैंने पहले भी कहा था, इसीलिए मैं चुप हो गई थी। आपको लग रहा होगा मैम कहाँ चली गई, बट मैम यही थी। चलो, तो पॉलिथीन से खुशी कहाँ चली, कहाँ घूमी? ओके आराध्या, इट्स डन, नाउ यू कैन सिट। आराध्या, यू कैन सिट, प्लीज सिट। नेशनल एंथम हो गया बेटा, यू कैन सिट। ओके, सो दीज पॉलिथीन्स आर मेड अप ऑफ थिन एंड सॉफ्ट प्लास्टिक। और प्लास्टिक को ना कभी आप देखना, वो कहीं भी रख दोगे, वो कभी जल्दी वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है। इवन अगर आप उसको जलाना भी चाहोगे ना, तो जो गैस किस एलिमेंट बाहर आएगा
that is very smelly and वो अच्छा smell नहीं देता है. So that is not only कि वो सिर्फ गंध अच्छा नहीं देता, that is also very poisonous. We'll see. है ना? It is strong. It is strong and cannot be destroyed easily. कौन? Polythenes. और यही रीजन है कि ये बहुत हार्मफुल भी है. कैसे? अब सपोज यूज किया आपने पॉलिथीन्स को, कहीं यहाँ वहां फेंक दिया, ठीक है, अगर ये ड्रेन में जाता है, नाले में चला जाता है, तो व्हाट इट कैन डू, इट कैन चोक इट. चोक का मतलब उसको जाम कर देगा, ठीक है, उसको चोक कर देगा. अगर गलती से कहीं ये किसी जानवर ने खा लिया तो उसका क्या होगा, दैट विल बी स्टक इनटू इट्स थ्रोट, उसके कंठ में जाके फंस जाएगा, है ना. तो इट इजीली डाइजेस्ट होगा नहीं. अगर वो किसी तरह अंदर बॉडी के चला भी जाए तो वो डाइजेस्ट नहीं होता, एंड दैट कैन कॉज डेथ ऑफ दैट पर्टिकुलर एनिमल. So it is very dangerous. So you see, what should we do with polybags after we have used them? If we throw them in drain, the drain will get choked. If an animal eats a polybag, the bag will stuck to its throat and it will not be able to breathe. क्या हो गया प्रियांक? मीनिंग पूछना है, जो भी पूछना है जब रिवीजन करेंगे तब पूछना. अभी मैं कुछ नहीं सुन रही, है ना. रिवीजन में फिर मैंने कहा है मैं सब कुछ कंपनसेट करूंगी, बट पहले मुझे पोर्शन खत्म करने दो, ठीक है. लिखवाने वाला काम खत्म करवा देती हूँ. रिवीजन फिर जब कराऊंगी तो वी विल डिस्कस ऑल द थिंग्स, सब चीज. व्हाट हैपेंड अहाना? So more or less we have done almost reader book, but there is lots of things are left in our practice. Ahana, hand raise करो अभी. Ahana, can you just speak up? बोलो. लो बोलेगी. So it may even die. If we burn a polybag, it will produce gases which will pollute the air. The best thing is not to use bags, polybags at all, and pack the things in paper, clothes or jute bag. तो हम लोग क्या करें, सामान कैसे लाएंगे? तो अगर पॉलिथीन यूज नहीं करेंगे तो सामान कैसे लाएंगे? सामान लाएंगे हम लोग किससे? सामान लेंगे हम लोग पॉलिथीन्स की जगह पे. वी कैन. अभी आ रहा, कैन यू प्लीज सिट डाउन प्रॉपर्ली? अभी आप जितनी अच्छे से अपने फोटो क्लिक करते हो, काइंडली क्लासरूम में भी उसी तरह अच्छे से बैठा करो. जब आप अपनी फोटो क्लिक करती हो तो वो अपना एंगल देखती हो ना कि कहां से मैं अच्छी दिख रही हूँ. व्हाई नॉट नाउ? सिट प्रॉपर्ली अवनी. दिस इज योर क्लासरूम. ओके. सो व्हाट द बेस्ट थिंग, everyone knows, even the environment, जो लोग भी हैं, the scientists also used to suggest us instead of using polythenes or polybags, we can use clothes, paper bags or jute bags. There are so many options. Or nowadays some of the shops or the maximum numbers of people are using, but no, still we are using polythenes. तो जितना भी हो सके हम लोगों को इससे बचना है ना. हमें पॉलिथीन्स का यूज नहीं करना है, अपने लिए, अपने नेचर के लिए, अपने सराउंडिंग्स के लिए और बाकी के भी लिविंग बीइंग्स के लिए, ताकि उनको वो डिस्ट्रॉय ना कर सके. अब इसी से रिलेटेड हमारा कुछ बैक एक्सरसाइज है जो पेज नंबर 52 में है. उसको आओ हम लोग अभी फटाफट कर लेते हैं. 52 में हम टू 52. Listen to the tape script carefully and complete the following statements. Dash and dash, bakers and grocers. Write down grocers, grocers and bakers, grocers and bakers. Often use polybags to pack things. Polybags are used to supply milk also. Write down milk. Polybags are made of dash, polythenes, polythene,
It is a kind of thin and soft. Thin and soft. Thin and soft plastics. Polybags are both useful and harmful. Write down harmful. Polybags are both useful and harmful. Instead of polybags, we should use paper. We should use paper clothes. Or jute bags to pack things. Surya, unmute yourself. Harshvardhan. हर्षवर्धन मोर। कृति आप बताओ। मैम स्कूल खुलने वाला है क्या? कृति यू विल गेट अ नोटिस फ्रॉम द स्कूल, है ना। अगर स्कूल खुलेगा तो आपको नोटिस मिलेगा बेटा। मैं नोटिस शेयर करूंगी क्लास ग्रुप में भी, आपको मैसेज भी जाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है। क्योंकि ड्रेस खरीदना है। नोटिस थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा ना। मैम हम लोग को मैम एक्सक्यूज मी मैम, मैं न्यू चिल्ड्रन हूँ, इसलिए मेरे पास डीएवी का ड्रेस नहीं है। अच्छा, जिनको यूनिफॉर्म से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो अभी मान लो 16 को खुलेगा भी, गवर्नमेंट ने अप्लाई किया। हर्षवर्धन मैं समझ गई आपका प्रॉब्लम कि आपके पास यूनिफॉर्म नहीं है, आप स्कूल कैसे आएंगे, ये नहीं। और भी कोई प्रॉब्लम है बोलो। मैम जैसे ये स्कूल का नोटिस कब मिलेगा? बेटा आज इवनिंग या कल तो निश्चित ही मिल जाएगा, क्योंकि 16 को गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है क्लासेस 50% अटेंडेंस के साथ, है ना। मैम हाँ मैम 16 अगस्त को मेरा बर्थडे भी है। ओके, अभी तो हर्षवर्धन से हम लोग मिलेंगे। जैसे अभी 9th और 10th के भैया लोग आ रहे हैं ना, 50% वन डे 50% द नेक्स्ट डे, तो मे भी आप लोगों का भी वैसा ही कुछ शेड्यूल जाएगा। बट अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगी जब तक स्कूल की तरफ से कोई मैसेज नहीं आता। लेकिन हाँ, आप लोग मेंटली प्रिपेयर रहिए कि नेक्स्ट वीक से आपके स्कूल खुलेंगे, है ना। अगर गवर्नमेंट के ऑर्डर्स आए हैं तो एवरीवन हैज टू फॉलो, तो हम भी करेंगे, है ना। ठीक है, अभी इससे रिलेटेड सिर्फ क्वेश्चन है तो मेरा टाइम मत किल करो, सभी का आंसर्स यही है। स्कूल खुलने का नोटिस जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखेंगे E2। व्हाट इज E2? E2 विल बी योर होमवर्क। इसमें कुछ नहीं है। व्हाट हैपेंस इन द फॉलोइंग सिचुएशंस, कंप्लीट द स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो लाइन से ही आपको स्टेप स्क्रिप्ट मिल जाएगा, चेक इट एज योर होमवर्क। दिस विल बी योर HW, इसको मेंशन कर लो HW के लिए, ठीक है। E2 ऑफ पेज नंबर 52 विल बी योर होमवर्क। सो फिनिश कर लोगे इसको सब। नाउ अब अपना प्रैक्टिस बुक निकालो सारे बच्चे, प्लीज ओपन योर प्रैक्टिस बुक नाउ। ओपन योर प्रैक्टिस बुक स्टूडेंट्स। सो हम लोगों ने हाउ मेनी तक कर लिया था, है ना। हमारा सिंगुलर प्लूरल वाला आई थिंक ये हम लोगों ने कर लिया था। आज हम लोग को डिस्क्राइबिंग वर्ड्स शुरू करना है। अच्छा बच्चों, मैं डेफिनेशंस आपको बताती जाऊंगी, डेफिनेशन लिखवा भी देती हूँ, पर मैं इससे रिलेटेड वीडियो और जो मैं जैसे बाकी सब में करती थी PDFs बना के आपको एक्सप्लेन करती थी वो भी करूंगी, बट रिविजन के टाइम में, ठीक है।
अभी फिलहाल जितने वर्कशीट्स है ना, हम लोग फटाफट पहले वर्कशीट्स को करते जाएंगे, क्योंकि 3 चैप्टर्स की वर्कशीट्स हैं हमारे पास। तो फटाफट इसको हम लोग कंप्लीट करके वर्कशीट्स को, और रिवीजन में ये मत सोचना कि मैम आज बहुत जल्दी करा रही है, बच्चों आप ही के लिए है। मुझे लगता है मान लो किसी रीजन से अगर नहीं करा पाए और क्वेश्चंस फॉर्म हो गए तो आप कैसे करोगे, है ना। एक्सप्लेन मैं कर दूंगी थोड़ा सा, लेकिन मेरा एक अपना तरीका है, मैं आपको वीडियोस दिखाती हूँ, मैं आपको पीडीएफ के थ्रू दिखाती थी, पिक्चर्स के थ्रू, वो भी करूंगी, बट व्हेन वी विल डू द रिवीजन, ठीक है। अभी पहले हम लोग पोर्शंस कंप्लीट करते हैं। तो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, आपको पता है बच्चों, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को भी थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेते हैं, नहीं जाएगा। अब पता है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को ही हम लोग एडजेक्टिव भी बोलते हैं। मैं यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को हम एडजेक्टिव भी बोलते हैं। जैसे नेमिंग वर्ड्स को हम नाउन बोलते हैं, रिप्लेसिंग वर्ड्स को हम प्रोनाउन बोलते हैं, उसी तरह से डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को हम एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। अब इसका डेफिनेशन मैं यहाँ से लिख रही हूँ, आप लोग भी अपने प्रैक्टिस बुक में पेंसिल से लिख लो इसका डेफिनेशन। व्हाट इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड? A word that देखो इसके लंबे डेफिनेशंस भी हो सकते हैं, मगर अगर सिंपल वे में याद रखना है आपको तो आप सीधे बोलो। अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज एन एडजेक्टिव, तो आप सीधा बोलो अ वर्ड व्हिच यूज्ड टू डिस्क्राइब अ नाउन और अ प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। इसके नाम में ही इसका डेफिनेशन पड़ा हुआ है, ठीक है। डिस्क्राइबिंग, तो अ वर्ड व्हिच यूज्ड टू डिस्क्राइब अ नाउन और अ प्रोनाउन is known as adjective या is called adjectives or describing words। दूसरा हम अभी जो लिखवा रहे थे, ये लिखवा रहे थे a word that qualifies a noun or pronoun। याशी अभी नहीं बेटा, प्लीज नहीं, अभी बोलो याशी, जल्दी बोलो बेटा, हर दिन अनम्यूट पॉसिबल। यस याशी बोलो। मैम हम लोग इसका ऐसे लिख सकते हैं, an adjective is a word which describe noun or pronoun। एग्जांपल एक ही बात है बेटा, वो तो एक ही बात है, नाक को ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, पकड़ना सिर्फ नाक की को, एक ही बात है, ठीक है। दैट्स कंप्लीटली ओके। एंड अभिराज सिर्फ बैकग्राउंड वाला खेल खेलता रहे। अभिराज यहाँ ध्यान मत दो, बैकग्राउंड बनाओ। अ वर्ड दैट क्वालिफाई, चलो, a word that qualify a noun or pronoun। कैसे म्यूट कर लो बेटा। ओके मैम। A noun or pronoun is called या is known as, आप known भी लिख सकते हो, known as adjective known as adjective, ठीक है। इसी में हम लोग ना सीनियर क्लासेस में एक लाइन और ऐड करवा देते हैं, that adjectives used to add informations about noun or pronoun। अब यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम्पल देखिए तो समझ में आ जाएगा कि एडजेक्टिव क्या होता है, ठीक है। यहाँ देखो बच्चों, जैसे यहाँ देखो ये क्या है, a fat boy, two boys, a happy boy, a tall boy, a thin boy। अगर मैं पूछूं तुम लोगों से कि नेमिंग वर्ड कौन सा है, नेमिंग वर्ड यहाँ पे क्या है, बॉय।
boys, boy, boy, boy. ठीक है, अब मैंने क्या लिखवाया कि a word that qualifies या describe, मतलब क्या, किसी नाउन के बारे में, है ना, जानकारी देता हूँ, हमें कुछ बताता हूँ, ठीक है। विशेषण किसको बोलते हैं हिंदी में, इसी को हम लोग विशेषण ही बोलते हैं। विशेषण बना होता है विशेषता से, ठीक है, मतलब क्वालिटी। We used to talk about the quality. When we used to talk about adjective, हम किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं क्वालिटीज की, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं that याशी is very pretty, याशी बहुत सुंदर है या बहुत अच्छी है, तो मैं याशी की क्या खासियत मैं बता रही हूँ, याशी सुंदर है ना। कृति इज वेरी इंटेलिजेंट, तो मैंने किस क्या कृति के क्या क्या खासियत है, दैट शी इज वेरी इंटेलिजेंट। तो इस तरह के वर्ड्स जो होते हैं ना, जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताए, वो सारे शब्द हमारे कहलाते हैं एडजेक्टिव। अच्छा, वो तुम्हारा शेप हो सकता है, वो तुम्हारा कलर हो सकता है, वो नंबर हो सकता है, ठीक है। आप कह सकते हो अगर हॉटनेस कोल्डनेस की बात करें, तो जैसे हॉट टी, कोल्ड कॉफी, तो ये जो हॉट, कोल्ड, ब्यूटीफुल, अगली, पोलाइट, रूड, फैट, थिन, वन, टू, रेड, है ना, ओवल, रेक्टेंगुलर इन शेप, ये सारे वर्ड्स जो होते हैं ये आपके नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, और इसलिए इनको हम बोलते हैं एडजेक्टिव्स। नाउ अभी यहाँ पे क्या करना, हम लोगों को थोड़ा सा मैच करना। आई थिंक सब लोगों ने डेफिनेशंस लिख लिया सब लोगों ने, ओके। सो लेट्स प्रोसीड, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी मैच करना है तो ये आसानी से आप लोग कर ही सकते हो। मैच द फॉलोअर, चलो फैट बॉय को इससे मिलाए हम लोग, ठीक है। नाउ टू बॉयज, हैप्पी बॉय, the boy is smiling,